all the students. Very good morning to all. For this today's Industry Institute interaction activity on incubation and entrepreneurship. Okay, so we have with us Dr. Sandeep Dahake, who is very experienced and distinguished personality, I must say, from Nagpur in biomedical engineering. So before starting today's session, I request our HOD sir, Dr. H.S. Purvar, to please give some introductory remarks. Sir, please. Good morning. Today's guest speaker, Dr. Sandeep Dahake, IIC coordinator, Professor Faisal Hussain, Dr. Tushar Sake, and dear students. I am very happy to welcome you all in today's session on incubator opportunity for student, faculty, early stage entrepreneur. In this fast-growing world, new idea and businesses are crucial for growth and solving the problems. And I have seen in our teacher and our students there is a potential to lead these changes with the help of their creativity and hard work. So keeping in mind, we organize this session today for you where Dr. Sandeep Dahake sir will share his expertise of the field. It's urged from my side to all of you to participate in this event actively, ask questions, share your thoughts and get benefited. So I, on behalf of Department of Mechanical Engineering, express my heartfelt gratitude to Dr. Sandeep for accepting our invitation and giving consent to be a part of this session. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. I will just introduce today's guest, Dr. Sandeep Dahake, sir. So he's having around 12 years of experience in this field. He did his PhD from IIT Nagpur and also PDM from the same institute. He's having almost 20 publications in reputed journals. Then he received direct grants for 50 lakhs, this one. Second, he received 1,000 euro again grants from Belgium. Then he received 2.5 lakhs from DMIMS, 10 lakhs from IIT Bombay, and recently he got around 89 lakhs PhD grants. Okay, so he is having vast experience for applying for your fund and use that for the benefit of society. So with that note, we'll start, but before that, I request our HOD sir to please welcome our guest, Sandeep sir, with a amendment. Thank you so much, sir. Now I request Dr. Sandeep to please get forward your talk. Thank you, sir.
good afternoon. Very good morning to all of you. Very good morning to all of you. So I am Dr. Sandeep Dahake. Presently I am a CEO and founder of Precision Private Limited. This company is incubated at the Center of Innovation at VNIT. Today, I am going to tell you the story of my startup. Are you interested in a startup? So, whether you are a student of second year or third year? Both. And which branch? All are mechanicals? Yes. Good. So, I am also a mechanical engineer, but working in the biomedical domain. In this presentation, I will touch this portion, that is idea generation and implementation, then my startup journey, how to overcome the challenges regarding the startup or related to the products, and the last is the role of accelerator as well as the incubator in the startup. So I have started my journey from VNIT Nagpur. This is the Katkam Center of VNIT Nagpur. I have joined VNIT Nagpur as a senior research assistant in 2011 and worked basically on the customizing plant. This is my product. This is my product. Do you know what is the meaning of the customization? Customization. What is the meaning of customization? Customization means the patient specific. It is specifically for that particular patient. It is not a generalized something which is not generalized. Something which is not generalized but specifically for this particular customer. That is the meaning of customization. And implant means what? Have you aware of this term implant? Implant. Have you heard the dental implant? Yes. Dental implant, different types of rods that requires in orthopedic surgeries and other surgeries. The term is the implant. The total term is the customized implant. So I have worked on customized implant during my senior research assistancy at the Katkam Center VNIT. Then I got chance to work as a PhD scholar in the same domain in Katkam Center. So I have started my journey in 2013 as a full-time PhD research scholar at Katkam Center, and I work basically on the custom surgical kinds. This is again another domain of, this is again another product. This is again another product which is exactly related to the implant. This is customized implant. This is customized guide. Are you aware of the jig? You are all mechanical engineers. Do you know what is jig? What is jig? What is mechanical jig? What is mechanical jig? Jig is a device. Jig is a device which is useful for to guide the tool. To guide the tool. Okay? What is the jig? Mechanical jig. It is the device which is used for to guide the tool. Maybe it is a cutting tool or the drilling tool. Okay? So that particular term is called as the jig. This is again the same thing. This is again the same thing. That guide is the jig. That guide is the jig. Again, the term surgery is related to that guide. It is connected to the guide. Means the device or the jig which is useful in the surgery, that is called as the surgical guide. The device or jig which is used in the surgery, that is called the surgical guide. Again, the term customized. That should be customized. क्योंकि क्या होगा कि एक particular device that may not be suitable for the another patient. एक device दूसरे patient को suit नहीं होगा because the anatomy of the patient vary from person to person. Okay? So again, this device is the customized surgical guide. That was I have done in my PhD. Then I got chance to work in a vetting project as a project manager. Again, I worked on several devices. Next, I got chance as a research associate in Katkam Center VNIT Nagpur in the same domain.
Not only we have developed this type of surgical guide, but actually used in the surgery. We perform the surgery using our device. And lastly, when I was working as a research associate, I applied for the grant. In the BIRA. What is BIRA? That is Biomedical Industrial Research Assistance Council. Biomedical Industrial Research Assistance Council. It is a unit where I applied for the grant and I got a grant of 50 lakh for my product. And the journey of startup has started from this point. So in my startup, I work basically on I converted the word customized into the adjustable, that is generalized term. Initially, I have told you that the term customized is patient specific. It is specifically for particular patient. Every time you have to design it, develop it and use it into the surgery. That is the meaning of that customization that I have changed as a universal guide. That is something, device is something which is useful for any patient. This is the generalized of adjustable and reusable surgical guide. So for this idea, initially when I applied to the grant, that time I only had an idea of something, and for my idea I got rupees 50 lakh from the BIRA. Everything, whatever I work, whatever in the domain I am working, everything is related to the 3D printing. You are a mechanical engineer, so you might have heard or you have seen this type of printers. Have you seen 3D printer? Do you know about what is 3D printer? So it is nothing special. It is similar to our normal printer, just like a 2D printer, paper printer. Only difference is that it is capable to print a 3D object. It is capable to print a 3D object. That is the basic difference between the 2D and the 3D. Because of development of the 3D object, we can call it as the 3D printer. What is the advantage of this printer? What is the advantage of this printer? Whatever you can think, whatever you can design, that can be possible to print by using this printer. But the problem is that, is it possible to fabricate a part? It is possible to fabricate any part in a desired material. So that is the limitation of the 3D printer. You cannot develop a part as per your required material. Okay, suppose you want to develop a part in a metal, is it possible by using this type of 3D printer to print it in a metal? The answer is yes, it is possible. Answer is yes, it is possible to develop a part in metal also, but that is the separate category. That is called as the metal 3D printer. Technology is also different. There are number of technologies available in the 3D printing. This is called as FDM printer, that is fused deposition modeling technique, where we use generally polymers. We generally use a polymer, but nowadays metal 3D printers are also available, by which you can fabricate part in a metal also, but there are some limitations. You can develop part in limited number of materials. Okay, so this is additive manufacturing technology, and I have started my work with this technology. Okay, now the question is that you are also a budding entrepreneur. Okay, you also develop such things that you can use in your product development. Okay, I have started with the 3D printing. If you are interested in a product development, you also have to take interest in different technologies, where whatever that technology is required related to your product. Okay, suppose you are developing something like glucose tester. So what are the important technologies related to that product? You need that you have to learn. Okay, related to your product, at least related to your product technology you must know. Okay, these are the various applications of 3D printing. These are like, it is vastly used in the toy making,
then electronics component, sports equipment, surgical devices, textiles, toys. These are the different areas where these 3D printings are prominently used. So my domain is the surgical devices and ads. This is the device, this is the product. Whatever I am telling you, you have to correlate my work with your work. Whatever the project you are doing in your third year mini project or final year major project. So whatever I am telling you, don't concentrate much on technical side or surgical or medical side, but try to relate my experience with your product, and if you are interested in the startup, you have to follow this type of path. Okay, so this is my device, particular red color one. This is my device. And what is this? This is the lower jaw. This is the mandible lower jaw having a tumor or a cancer. Okay, this is a particular tumor or cancer. In the surgery, mandibular surgery or cancerous surgery, the first step is to resect that particular disease part. Okay? Resect that particular disease part from that particular portion. Okay? So how to cut this properly? That is the problem statement. That is the problem statement. It is important, it is equally important to cut this portion exactly. And what after cutting? You have to fit something over there. That is called as implant. That is called as implant. After cutting the particular portion, you have to fit something over there. That is called the implant. There are two methods. You can change this portion by the implant or by the bone. That is called as the bone graft. एक बोन का टुकड़ा निकालेंगे पैर में से और वो वहां पे लगाएंगे. ठीक है? या तो implant लगाएंगे या तो graft लगाएंगे. This is called as bone graft, and another method is the implant. But before that, when it is possible to exactly fit that implant to the plant location, when cutting is proper, and there is a roll of the jig, and this is called a surgical jig. So you can see that there are two cutting portions. In between, this is the complete tumor or cancer portion. You have to design it in a cancer. Doctor will tell you what is the size you have to resect. You are a mechanical engineer, you do not understand what is the cancerous portion and non-cancerous portion. एक बड़ा हो गया वो एक bulky portion आ गया, that doesn't mean एक cancerous portion है. एक इसमें अंदर भी फैला हुआ है. ठीक है? So who will tell that? Surgeon or doctor can tell you what is the exact size of this particular tumor. And this is the device, this is the jig which is required for accurate cutting of the tumor. Accurate cutting of the tumor is required to fix this implant exactly on a plant location. Okay? तो ये मेरा प्रोडक्ट है. आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है. पंखा बनाओ, एसी बनाओ, या छोटा कुछ हाइलाइटर बनाओ. ठीक है? वो हो गया आपका प्रोडक्ट. दिस इज माय प्रोडक्ट. तो करना क्या है? आप क्या कर सकते हो? यू मस्ट नाउ नो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आप कौन से प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन दे रहे हैं. That is very important. Otherwise आप बोलोगे कि मैं कुछ बना देता हूँ, बन जाएगा, लेकिन मार्केट में नहीं बिकेगा. आप स्टार्टअप क्यों कर रहे हो? Why you want to enter into the startup? आप स्टार्टअप पे क्यों जा रहे हो? आप डायरेक्टली जॉब क्यों नहीं कर रहे? वो भी अच्छा है तरीका. ठीक है? बट स्टार्टअप ही क्यों? If you want to sustain in a startup, आपको स्टार्टअप या प्रोडक्ट ऐसा बनाना है कि जो मार्केट में सेल हो सके, अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं. ठीक है? तो प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड दिस इज द सर्जिकल लाइट. दिस इज माय प्रोडक्ट. इसमें मैंने मेरा फीस लिख लिया. देन ये प्रॉब्लम कैसा मिला? इसका आइडिया कहां से आया? This was the case of government dental college and hospital. This was the case of government dental college and hospital. The lady having a mandibular tumor
and surgeon, we have given a 3D printed model to surgeon. We have given a 3D printed model to surgeon. सर्जन ने क्या किया, नॉर्मल पेन से इसके ऊपर कुछ बनाया, क्योंकि इतना पोर्शन कट करना। क्वाइट इंटरेस्टिंग और बोर, इंटरेस्टिंग बोर, ठीक है। तो सर्जन ने क्या किया, आपको किसी कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली पूछो, ठीक है। सर्जन ने क्या किया कि by using a normal pen we draw something on that is his manual planning, that is his manual planning for the resection of the tumor or resection of the tumor, and based on his manual planning he performed the surgery and fitted that particular implant over there. You can see whatever the highlighted in circle, that is the huge gap between the implant and the bone. अगर उसमें गैप आ गया तो क्या होगा, अगर इम्प्लांट और बोन में गैप है जिसमें मुझे स्क्रूज फिट करना है, अगर उसमें गैप है, that means that screws are not properly fitted at the plant location and there may be chances of the loosening of the screw. There may be chances of the loosening of the screw. और अगर screws loose हो गए तो after some time there may be chances of the that required a resurgery. Resurgery का मतलब आप समझते हो, दुगना कॉस्ट, दुगना पेशेंट को प्रॉब्लम, ठीक है। That we can control. How? By cutting this particular tumor properly, and for that this type of whatever the customized jig I have shown to you, that can play the very vital role. अगर आपका कटिंग प्रॉपर है तो आपका इम्प्लांट एग्जैक्टली फिट लगेगा। सर्जरी में सर्जन को मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो मेजरमेंट जितना ट्यूमर का साइज है, कितने पोर्शन से आपको कटिंग करना है, that already you have incorporated in the surgical guide which you have prepared or developed before the actual surgery. Okay, वो पहले ही प्लान आपने कर दिया। Now at the time of surgery, surgeon just have to fit this jig at his location and perform the cut. Okay, so which that improve the accuracy of the surgery and reduce the surgery time. समझ में आप प्रॉब्लम क्या था, उसके ऊपर हमने सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई और हमने सॉल्यूशन के ऊपर काम करना शुरू किया। सो दिस इज द मेथोडोलॉजी बाय विच we develop the implant as well as the surgical guides. Okay, so it requires CT scan for the raw data. किसी के लिए अगर आपको कुछ डिजाइन करना है तो कुछ रेफरेंस लगेगा, for that we use CT scan. Next step is the image processing. Have you heard that term, image processing? Whatever the CT scan we take, that is available in the DICOM format, that you have to convert into 3D printing compatible format. Okay, so it requires the image processing. And another important step is the virtual surgical plan. In virtual surgical plan, this is 4 number figure. In virtual surgical planning, with the surgeon's input, you have to design the implant as well as the surgical guide. That is the custom surgical guide. Okay, इससे होगा सर्जन जब बताएगा कि कितना पोर्शन कट करना है, उस पोर्शन को लेके आपको इम्प्लांट और सर्जिकल गाइड डिजाइन करना है, ठीक है। This is the surgical guide, okay, and this one is the implant. You can perform finite element analysis on this to check the design. आपने finite element analysis सुना है, okay, and the next step is the manufacturing of particular by using the 3D printing. It is possible to develop this type of complex structure by using only 3D printer, not any conventional machining. Not any conventional machining. This type of complex set you cannot manufacture by using any conventional machining. So it requires the 3D printing machine. So this is the anatomical model. This is the surgical guide. Again, it is a custom surgical guide specifically for this particular patient. पेशेंट चेंज हो गया, गाइड का डिजाइन चेंज हो गया। सबका ट्यूमर सेम नहीं रहेगा, सबका अलग रहेगा, उसका लोकेशन अलग रहेगा, साइज अलग रहेगा, ठीक है। एंड दिस इज द इम्प्लांट, दिस इज पर्टिकुलर द इम्प्लांट
fabricated by using a metal 3D printer. Fabricated by using a metal 3D printer. उसके बाद इसका मॉक सर्जरी करते हैं. मॉक सर्जरी मतलब क्या? प्लास्टिक के मॉडल के ऊपर अपना डिवाइस लगा के कटिंग करके देखना और इम्प्लांट लगा के देखना. That particular thing is nothing but the mock test before the actual surgery. क्यों जरूरी है? क्योंकि सर्जन को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो बनाया वो बराबर है. अदरवाइज एक बार पेशेंट को खोल दिया या कट कर दिया उसके बाद उसका सर्जरी करना ही है, उसको वैसा नहीं छोड़ना. ठीक है? So before that mock test is very important. Okay? And after that you can use your device to the actual surgery. Okay? So this is the complete methodology from start to end. From start to end. Yes, any question? So this is the complete methodology from start to end. Or the customized implant or customized surgical guide. Now the question is that I want to involve into the startup. I want to involve into the startup. जब मैं स्टार्टअप की बात करता हूँ तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फंडिंग. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फंडिंग. अगर मैं बोलता हूँ मुझे 3D प्रिंटर खरीदना है, do you know the cost of this 3D printer? Do you know the cost of this 3D printer? This is the Stratasys 3D printer and desktop model. Okay, the cost of this printer is 20 lakh rupees. The cost of this printer is 20 lakh rupees and the material available is only ABS. That is the only one material which is compatible with this machine. And the cost of one spool is rupees 25,000. At a time, 2 spool required. One is for the model material, other is for the support material. Means आपको 20 लाख का मशीन लगेगा प्लस जेब में 50,000 रुपए 2 स्पूल खरीदने के लिए होंगे. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इशू है फंडिंग. अगर फंडिंग नहीं है तो क्या इज इट पॉसिबल टू रन अ स्टार्टअप और एंटर इनटू द स्टार्टअप? अगर फंडिंग ही नहीं है आपके पास तो आप स्टार्टअप में घुस सकते हो. प्रोडक्ट कोई भी रहने दो, फॉरगेट दिस प्रोडक्ट कोई भी रहने दो. आपको साला पानी का बॉटल भी बनाना है तो आपको क्या लगेगा? सबसे पहले लगेगा फंडिंग. सबसे पहले लगेगा क्या? फंडिंग. मत बोल रहा है. So these are again in detail how to design and that. And this is the way how to use this into the surgery. These are the quarters, fix it into the mandible, then perform the cut, and after cutting, you can very easily fit this particular implant over there. This is the comparison between what happens when you use the surgical guide and without using surgical guide. So we got a better result with the use of surgical guide as compared to the without using surgical guide. मैंने क्या बोला? अगर आपको स्टार्टअप करना है तो सबसे पहले लगेगा फंडिंग. सबसे पहले लगेगा फंडिंग. तो फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू प्रेजेंट योर आइडिया इन सच अ वे दैट यू विल गेट अ फंड. You have to present your idea in such a way that you will get a fund. When I tried on the funding, I saw that the person who is having a 3D printer or who is expert in the designing, he can very easily design such type of surgical guides. Isn't it? The person who is expert in designing and having a facility of 3D printing and some connections with the surgeon, he can very easily design this type of surgical guide, because there are many people in the market who are already developing this type of surgical guides. Okay, so the question is that if I applied with the same idea to the funding agency, even though my idea is innovative, I have added many things in that. Okay, even though my idea is very good, innovative, I have added many things into the particular device, but it is very problematic to get a fund with this idea. So you have to change something. You have to change something which is more innovative and other than the products which are already available in the market. आप जो भी बना रहे हो, बॉटल बना रहे हो, बॉटल ऐसी होनी चाहिए कि जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है. अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आपका भी प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा. देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज who develop the bottles.
सेलो वाला बनाता है, अलग अलग लोग बनाते हैं वहाँ, लेकिन हमारे मिल्टन का भी चलता है, सेलो का भी चलता है। और आप थर्ड हो कि जो आप और एक बॉटल बना रहे हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट तो मार्केट में चलेगा। अगर कंपैरिजन होगा मिल्टन का, सेलो का और एक थर्ड प्रोडक्ट आपका, तो जो बेस्ट है वो मार्केट में चलेगा, जिसका प्राइस कम है, जिसका रिजल्ट अच्छा है, पानी ठंडा रख रहा है, गर्म भी रख रहा है, वो प्रोडक्ट मार्केट में डेफिनेटली चलेगा। लेकिन जब आप फंडिंग के लिए अप्लाई करोगे तो फंडिंग के लिए वहां पे प्रॉब्लम होगा, बिकॉज दे विल आस्क यू what is the difference between the previous product and whatever you have done. वहां पे कुछ समय पे आपके पास अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है तो you will not get funds related to that product. Okay? So आप जिस भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उससे डिफरेंट, ठीक है? तो सेम प्रॉब्लम सेम है। We applied for the Virag grant, प्रॉब्लम सेम है कि एक्यूरेट कट करना है so that इम्प्लांट एग्जैक्टली वहां पे लगे। जो प्रोडक्ट हमने बनाया था कस्टम सर्जिकल गाइड, that is also innovative product, इंडिया में अभी तक ये यूज नहीं होते थे, but recently people started developing this type of custom surgical guides also. Okay, so यहाँ पे हमने इनोवेशन क्या किया, इसका इनोवेशन क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है हमने ये देखा कि ये जो प्रोडक्ट है कस्टम सर्जिकल गाइड, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो क्या प्रॉब्लम्स है? इवन तो दिस सर्जिकल गाइड, कस्टम सर्जिकल गाइड गिविंग अ एक्यूरेट रिजल्ट, इवन दो कस्टम सर्जिकल गाइड्स गिविंग अ एक्यूरेट रिजल्ट, बट ये क्या है, प्लास्टिक पे बना हुआ है। मेनी टाइम्स व्हाइल कटिंग द ट्यूमर, मेनी टाइम्स क्या हो रहा है, बोर हो रहा है, मतलब बोर हो रहा होगा ऐसा पता नहीं, प्लीज बात, ठीक है? मेनी टाइम्स व्हाइल कटिंग द ट्यूमर दिस प्लास्टिक बेस्ड गाइड मे कट। आप क्या कर रहे हो, हाई स्पीड स्टेनलेस स्टील का कटिंग सॉ यूज कर रहे हो एंड गाइड यूज कर रहे हो प्लास्टिक का, तो मेनी टाइम while cutting that particular bone by using this HSS tool, that plastic guide may cut and hamper the accuracy of the surgeon. ये प्रॉब्लम हमने नोट, ठीक है, ये प्रॉब्लम हमने नोट किया कि this type of plastic based guide may cut while actual cutting of the bone. Okay? प्लास्टिक का इसलिए लो स्ट्रेंथ उसका कम है, कटिंग के टाइम पे कट जाता है। अनदर प्रॉब्लम इज every time you have to develop this type of surgical guide. पेशेंट चेंज हुआ, गाइड चेंज करो, फिर से डिजाइन करो, फिर से मैन्युफैक्चर करो, ठीक है? बिकॉज़ इट इज अ कस्टमाइज्ड गाइड, सबका प्रॉब्लम अलग है, सबको अलग कस्टमाइज्ड सर्जिकल गाइड लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को लेके हमने विराट को अप्लाई किया और सॉल्यूशन क्या दिया उस पे सॉल्यूशन दिया, कैन वी डेवलप अ डिवाइस व्हिच इज एडजस्टेबल। पहली चीज जो कस्टमाइजेशन है वो हटा दो, एडजस्टेबल बनाओ, ताकि एक ही गाइड एक पेशेंट को लगाओ, उसका काम होने के बाद उसको निकालो, वॉश करो, स्टेराइल करो एंड यूज इट इन नेक्स्ट सर्जरी। अच्छा सॉल्यूशन है, क्या बुराई है इसमें, ठीक है? वी आर डेवलपिंग दिस इन अ मेटल। अगर मेटल में बनाते हैं तो ये जो प्रॉब्लम था प्लास्टिक का गाइड कटने का, ये नहीं रहेगा। मेटल में तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एडजस्टेबल है तो किसी भी पेशेंट को लगेगा, ठीक है? तो एडजस्टेबल, हाई स्ट्रेंथ, रीयूजेबल, सुटेबल फॉर एनी पेशेंट। अगेन कॉस्ट इफेक्टिव, इसका कॉस्ट है 20,000 रुपीज फॉर डिवाइस इन बायोकम्पैटिबल मटेरियल। आप बोलोगे कि प्लास्टिक मटेरियल सर 500 रुपए में भी आ जाएगा। It is not a normal material, it is a biocompatible polymer. Biocompatible का मतलब ये है कि जो पेशेंट के बॉडी में डाल सकते हैं, which is ISO certified material. आप कोई भी मटेरियल डायरेक्टली बॉडी में विदाउट परमिशन नहीं डाल सकते, ठीक है? So it requires a permission, regulatory approval. So the approved material है biocompatible. उस मटेरियल में इसका गाइड का कॉस्ट है 15 to 20,000 rupees. And whatever the idea we propose in metal, the cost of that
device is around 30,000 rupees per device. Okay? Again, it is a use. एक बार यूज करो 5 से 10 साल दिन चलेगा. ठीक है? So it is a better solution and for this idea when I applied to the Viraj, I have only this raw figure. सिर्फ इस raw figure पे मुझे 50 लाख रुपए का ग्रांट गवर्नमेंट. सिर्फ फिगर का इससे ज्यादा कुछ नहीं था. ठीक है? आपके प्रोडक्ट में भी आपको एक चीज देखना है कि उसमें इनोवेटिव मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें इनोवेटिव मैं क्या कर सकता हूँ. अगर वो चीज है तो आपको फंड्स इजीली मिलेंगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा. ठीक है? अदरवाइज आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो विद दिस आइडिया वी डेवलप दिस डिवाइस. वी डेवलप दिस. अभी आप देख सकते हो इसके इट इज टोटली मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये सब चीजें नहीं है. यहाँ पे पूरे कंपोनेंट्स के क्या है, एडजस्टेबल कंपोनेंट्स है. आप खोलो एज पर द रिक्वायरमेंट, जहाँ पे जो चाहिए आप लगा सकते हो. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर सर्जरी चालू है और डॉक्टर को लगता है कि मेरा साइज थोड़ा सा प्लानिंग के वक्त गड़बड़ हुआ है, मुझे थोड़ा शिफ्ट करना है 1 mm 2 mm, so that can also possible in the adjustable guide. कस्टमाइज्ड गाइड में एक बार कर दिया उसका काटना ही है, वो चेंज नहीं हो. ठीक है? अदरवाइज पूरा का पूरा जीरो से स्टार्ट करना. So that is the advantage of this guide. Every component is adjustable. So as per the requirement of the surgeon can adjust, select the component and use it into the surgery. Another important thing is the testing. Whatever you have developed, that must be tested product. Otherwise, आप देखते हो चाइना के प्रोडक्ट बहुत सस्ते में मिलते हैं, आप यूज करते हो, उसका कोई भरोसा नहीं वो कब बेकार हो जाएगा. क्यों? ऐसा क्यों होता है? प्रोडक्ट तो बहुत बनाते हैं, लेकिन टेस्टिंग पे इतना पैसा खर्च नहीं करते हैं. ठीक है? So basic important is the testing. Whatever you are developed, the testing is a very important place in the product development. So we have also developed, perform the testing, virtually tested this, then develop a prototype. Prototype develop, whatever the prototype develop, that tested on 3D printed model on 15 cases. Then actually develop product in SS304 material. That product again tested in a lab on the 3D printed model. So that rigorous testing is very important. And whenever you talk about the medical sciences, the product must be tested only. Otherwise, it will not move to the other step. Okay? This is the final kit of my device. So these are the different components. As per the requirement, surgeon can select and use it into the surgery. This is the assembled one, and this is the kit of this particular device. When we develop this particular product, this is the up to this Viraj grant is over 50 लाख का मनी हो गया इतना बनाने का. लेकिन डिवाइस मार्केट में नहीं है. ठीक है? ये फाइनल प्रोडक्ट है. विराज का प्रोजेक्ट 50 लाख रुपए यहाँ पे खर्च हो गए. आई एम टेलिंग यू द जर्नी ऑफ स्टार्टअप, हाउ फंडिंग इज इम्पोर्टेंट. फंडिंग का क्या महत्व है? यहाँ पे 50 लाख रुपए खर्च हो गए, यहाँ तक पहुँचने. ठीक है? When we show and taken the feedback from different doctor surgeon, तो हमने ये देखा कि डॉक्टर बोलते हैं कि ये डिवाइस थोड़ा सा बल्की है, भारी है. ठीक है? डिवाइस बल्की है, भारी है. ये जो हमने जॉब प्रोवाइड किया है यहाँ पे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लगाने में प्रॉब्लम है. तो these are the challenges. आप बॉटल बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट है बॉटल, उसमें क्या प्रॉब्लम होगे ये आपको जब बनेगा प्रोडक्ट तब और अच्छे से दिखेंगे. ऐसा नहीं कि पहले दिन ही ऐसा होता है कि आपने पूरा सोच लिया कि कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, क्या रहेगा, कितना मैं उस पर काम करूँ और एक प्रोडक्ट बना और वो फाइनल हो गया. ठीक है? टाटा नैनो कितने बार बनी आपको पता है? टाटा नैनो कितने बार बनी, कितने वेरिएशंस आए उसमें. ठीक है? ऐसा क्यों होता है? एक बार प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तो फाइनल फुल प्रूफ प्रोडक्ट होना चाहिए.
लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कस्टमर्स यूज करते हैं तो उसके फीडबैक मिलते हैं, उस फीडबैक को लेके प्रोडक्ट और इंप्रूव होता है। ठीक है, तो आपका बॉटल बनेगा, कस्टमर यूज करेंगे, उसके बाद उसमें कोई कंप्लेंट करेगा, किसी को अच्छा लगेगा, वो फीडबैक लेके आपका प्रोडक्ट फिर से रिवाइज होगा। ठीक है, तो ये फीडबैक हमको मिले कि ये प्रोडक्ट थोड़ा सा बल्कि है, यहाँ पे ये जो जॉब है फिक्सेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो विथ दिस प्रॉब्लम वी चेंज अवर डिवाइस। ठीक है, विथ दिस प्रॉब्लम कब आएगा? जब आप फीडबैक दोगे, जब आप आपके प्रोडक्ट यूज करोगे मार्केट में, तब फीडबैक आएगा। अदरवाइज आपने बना के रख दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, now you can see that we have changed this big job or big fixation component by using the simple fixation plate. By using the simple fixation plate. But here the challenge is that the anatomy of the patient varies from person to person. How to fix this particular single plate for everybody? एक प्रॉब्लम है, जॉब को तो छोटा करके फिक्सेशन प्लेट बना दिया, ठीक है, लेकिन फिक्सेशन प्लेट में भी प्रॉब्लम ये है कि सबका एनाटॉमी अलग है। ठीक है, छोटे बच्चों का अलग है, मिडिल एज वालों का अलग है, ओवर एज वालों का अलग है, लेडीज में अलग है, जेंट्स में अलग है। ठीक है, सबका ट्यूमर का टाइप अलग है। ठीक है, तो एक फिक्सेशन प्लेट सब में नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया, एक स्टडी कंडक्ट किया और ये देखा कि कितने टाइप के वेरिएशंस होना चाहिए। ठीक है, हमने उसमें 4 टाइप के फिक्सेशन प्लेट्स बनाएंगे, आउट ऑफ दैट कोई ना कोई लग जाता है। ठीक है, तो ये केस आपके इसमें भी रहेगा। आप व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, उसमें भी ये चीज आएगी। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल डिवाइस और इम्प्रूव डिवाइस। यहाँ पे वो प्रॉब्लम चेंज हो गया, हमने इसको एज अ स्केल करके डाला, so that at the time of surgery if required some adjustment that can be possible by using the same device only. No need to take the complete device out of the particular thing and then bring it at the same location. You can adjust this cutters. This is the way how to use this into the surgery. So it requires a 3D printed model having a plan. This is the plan of the surgery from here to perform the cut. Based on this plan, fix this particular device over here. Then remove the device from this RP model and then use it into the surgery. Perform the cut, remove the tumor, and at the location you can very easily fix your implant, which are already designed and developed at the time of planning. Okay, this is the complete procedure to use this particular device. Again, that device we have tested it again at the similar way, We have whatever this was the first version of the device, and then we changed the version into the version 2. That drastically weight has been reduced. The problem था, जो challenge था, ठीक है, वो ओवरकम हो गया। आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे जो वेट दिख रहा एक फीट का, जब एक जॉ के साथ था तो ये अराउंड 300 ग्राम था, दैट रिड्यूसेस अप टू 120 ग्राम। एक प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, नया वर्जन आया, उसके वजह से ये अचीवमेंट। ठीक है, तो द डिवाइस when used for complete mandible, the weight of this particular product is around 120 gram. Okay, अगर half mandible को यूज होता है तो around 18 gram, इतना रिड्यूस। ठीक है, तो these are the challenges that you have to overcome and move forward. Now this is the final thing or particular jig. This is the final thing, and these are the variants available. These are the different variants available. Out of this, one can be used into the surgery. Even angular cutting is also possible. Even angular cutting is also possible with this device. At the time of surgery, you can adjust this also. Okay? Then different types of cutters also available. सबका एनाटॉमी बड़ा है, किसी का हाइट कम है, किसी का छोटा है, छोटे बच्चे का कम रहेगा, किसी का बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस
इसमें भी वेरिएशन है, ठीक है। इसके साइजेस भी 12 है, जो रिक्वायर है आप यूज करें। So this is the final device and it is in now a clinical trials. It is now in a clinical trials at the Kartamagi Institute of Medical Sciences. So when you talk about the journey of this product, you can see that this was the problem. This was the problem. We find one lady having a mandibular tumor at Government Dental College and Hospital. We saw that the surgeons are preparing a model just by manual planning. So we have given a solution of a custom surgical guide. That is the version 1 of surgical guide. This is just like a box-like structure. एक ऊपर से लगाओ, एक नीचे से लगाओ, ढक्कन लगाओ, दो कटर्स आएंगे, बीच में कटिंग के स्पॉट आएंगे, वहां से उसको कट कर दो. That was the first design. ये चेंज होके सेकंड वर्जन बना, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया सर्जिकल गाइड का सेकंड वर्जन जो था, ठीक है। ये सिंपल है, लगाने को आसान है, लेकिन प्लास्टिक का है, लगाते वक्त टूट जाता है कई बार। एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन प्लास्टिक मटेरियल है, और इसको अगर लेके फंडिंग में जाते थे तो फंडिंग नहीं मिलता था। ये भी स्ट्रेटेजी आपने होना चाहिए, पता रहना चाहिए कि पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका वर्जन 2 को यूज करके वर्जन 3 का आइडिया दिया कि हम ऐसा बनाएंगे प्रोडक्ट कि जो एडजस्टेबल हो, मेटल में बने, उसका स्ट्रेंथ अच्छा हो एज कंपेयर टू द कस्टम सर्जिकल गाइड। इवन दो इज गिविंग अ वेरी एक्यूरेट रिजल्ट, कस्टम सर्जिकल गाइड रिजल्ट बहुत एक्यूरेट देगा, तो भी हमने उसमें प्रॉब्लम निकाला कि ये प्लास्टिक का है, कट्टा है, बार-बार उसको बनाना पड़ता है। So we changed the idea and proposed a device which is adjustable, developing in metal and suitable for any patient. So with this idea we got a Virat grant. हमने डायरेक्टली ये ग्रांट से ये बनाया, that is the version 4. वर्जन 4 के बाद ये आया वर्जन 5, उसका वेट रिडक्शन करके जॉब को चेंज करके ये फाइनल डिवाइस that is version 5 and these are the results of this particular device. Now नेक्स्ट ग्रांट के लिए अप्लाई करना, एक डिवाइस बन गया which is the jig. Now it is again an adjustable jig available in the metal, but the problem is that is only useful for the cutting purposes only, cutting and fixing of the implant. Another very important surgery is instead of using this particular metallic implant, we can replace this particular portion by the bone. मैंने बताया कि सर्जरी के 2 टाइप, एक इम्प्लांट लगा सकते हैं और इम्प्लांट नहीं है तो क्या लगा सकते हैं, बोन लगा सकते हैं। पर्टिकुलरली कौन सा बोन लगाते हैं, फिबुला बोन। ये ऊपर वाला जो है ये है टिबिया, और उसके पीछे का जो बोन है दैट इज द फिबुला बोन, ठीक है। 2 बोन है, तो पर्टिकुलरली फिबुला बोन का ग्राफ निकाल के, मतलब टुकड़ा निकाल के वहां पे लगाते हैं, ठीक है। नाउ अनदर चैलेंज इज हाउ टू कट दिस फिबुला एग्जैक्टली, हाउ टू कट द ट्यूमर। उसके लिए सॉल्यूशन है, अगेन अनदर चीज है कि वो फिबुला भी कैसा एक्यूरेटली कट होगा सो दैट वो एग्जैक्टली प्लांट लोकेशन पे लगेगा। दैट इज फॉर दिस पर्पस वी हैव डेवलप्ड अनदर डिवाइस. दिस इज द एडवांस डिवाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर चिप, ठीक है। ये ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, ऐसे बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है, बार-बार हम प्रॉब्लम भी ढूंढ रहे हैं और उसको सॉल्यूशन देने के लिए हमको फंड भी चाहिए. फंडिंग कब मिलेगा, जब इनोवेशन है तब फंडिंग मिलेगा, अदरवाइज फंडिंग नहीं मिलेगा. सो विद दिस आइडिया, ये आइडिया क्या है वापस एक बार बता दो. सी द सर्जरी, दिस इज द फिबुला बोन एंड दिस इज द डिफेक्ट. इन दैट डिफेक्ट सर्जन हैज टू कट दिस फिबुला इनटू द नंबर ऑफ पीसेस. फिबुला क्या है, स्ट्रेट बोन. फिबुला क्या है, स्ट्रेट बोन है. मैंडिबल क्या है, एक यू शेप का बोन, ठीक है. नाउ सर्जन हैज टू कट द फिबुला इन सच अ वे दैट ही कैन अलाइन द फिबुला विद द मैंडिबल प्रॉपर. नहीं तो क्या होगा, आपने पुराने सर्जरी देखे होंगे, अपने शरद पवार पता है, उनको भी मैंडिबल का कैंसर हुआ, ओरल कैंसर हुआ और उनका चेहरा थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हुआ, ठीक है. ये बहुत पुराने केसेस में बहुत दिखे. ऐसा क्यों होता है, because of the improper cutting of this particular bone and improper fixation of this particular bone or improper reconstruction of the mandible. Okay, so this is the surgery. Surgeon has to cut this fibula into a number of pieces and align with the mandible
as per his requirement. Okay. Now the challenge is that you require here a device which can cut the mandible as well as the fibula also. So currently in the market, this type of plastic-based surgical guides are available. There are two separate guides are required. One is for the mandible cutting, other is for the fibula cutting, and the problems are same. This is again a plastic-based guide. Every time you have to design and develop it. So we given a new solution. तो ये जो गाइड है हमारा ये सेम है जो पहले बनाया था उसी का एडवांस वर्जन है. यू कैन सी दैट दिस इज द गाइड. यू हैव टू फिक्स इट इनटू द मैंडिबल. सेम गाइड को आप स्ट्रेट करो. ठीक है. यहाँ पे ये जो स्क्रूज लगे हैं उसको मैं अगर ये करता हूँ सीधा करता हूँ ये सीधा भी हो जाएगा. ठीक है. तो इसको मैंडिबल पे लगाओ. मैंडिबल पे कटिंग करो. कटिंग करने के बाद इसको स्ट्रेट करो. चेंज दिस मिडल टू स्क्रू विद द फिबुला कटर. वहाँ पे फिबुला कटर एक अलग से एडिशनल चीज दिया है. ठीक है. विद दिस फिबुला कटर यू कैन वेरी इजीली कट दिस पर्टिकुलर फिबुला आल्सो एज पर द रिक्वायरमेंट. ये कटिंग भी करता है उसका ग्राफ भी बना के देता है जैसा आपको चाहिए. एंड वेरी इजीली यू कैन फिट दिस पर्टिकुलर पोर्शन इन द मैंडिबल. अदरवाइज सर्जरी इतनी कॉम्प्लेक्स है. फिबुला को प्रॉपर्ली मैन्युअली कट करना और वहां पे लगाना इट्स नॉट अ जोक. ठीक है. सर्जरी टाइम अराउंड रिक्वायर्ड 8 to 9 आवर्स. ठीक है. जो डायरेक्टली आपकी रिड्यूस हो जाती है 3 to 4 आवर्स. क्यों? बिकॉज ऑफ द दिस पर्टिकुलर डिवाइस. अदरवाइज वो फिबुला मैन्युअली कट करते हैं. उसके बाद उसका मेजरमेंट हो. उसके ऊपर प्लेन है. ये प्लेन है कटिंग प्लेन है. उस कटिंग प्लेन से ही कटना चाहिए सो दैट वो प्रॉपर्ली कर्व बनेगा. अदरवाइज कर्व नहीं बनेगा. उसमें क्या पाएंगे तो वो जो पहले वाला प्रॉब्लम है स्क्रू फिक्स होंगे वो निकल जाएगा या टेढ़ा लगेगा. ठीक है. दैट कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग दिस सिंपल इंस्ट्रूमेंट. ओके. एंड और इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए हमें अभी तक 3 फंडिंग ग्रांट्स मिले. ठीक है. रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑफ NRDC दैट इज given by NRDC National Research Development Corporation. और प्रोग्राम का नाम है TDVC टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वैलिडेशन एंड कमर्शियलाइजेशन. द ग्रांट ऑफ ₹89 लाख. ओके. तो इस पर्टिकुलर डिवाइस में आपके प्रोडक्ट में भी ये सब चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है. मेरा आपको बताने का सर्जरी बताने का प्लानिंग ये नहीं है कि आपको सर्जरी वो नहीं समझी तो भी चलेगा. बट फंडिंग के लिए क्या करना है आपको. ये कौन से स्ट्रेटेजी यूज करना है. हाउ टू फाइंड द प्रॉब्लम. हाउ टू गिव द सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम. हाउ टू अप्लाई फॉर द फंडिंग बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशन. ये इंपॉर्टेंट है. ये आपके इसमें भी होना चाहिए. ठीक है. विदाउट द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द डिवाइस I have to go for the clinical trial. Our trials already going to the Tata Medical Institute of Medical Sciences. Then you have to take a regulatory approval. आप कोई भी डिवाइस बनाते डायरेक्टली पेशेंट के बॉडी में नहीं डाल सकते हो. इसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल लेना, डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है. जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, जब आप अप्लाई करते हो तो आपको एक टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलता है जिससे आप सिर्फ कुछ मॉडल्स बना सकते हो. जैसे कि मैंने बोला कि मुझे 10 का रिक्वायरमेंट है तो मुझे उसका परमिशन लेना पड़ेगा कि आप 10 सैंपल बना सकते हो. दैट इज कॉल्ड द टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दैट आर ओनली यूजफुल फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस. अगर टेस्टिंग मैं करता हूँ उसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं दैट आई हैव टू सबमिट इट अगेन टू द दैट पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी. वो वापस आपको अप्रूवल देगा कि आपका रिजल्ट ठीक है. अभी आप उसको 50 केस 100 केस के लिए बनाओ. फिर उसका फीडबैक आएगा और फिर आपको मिलेगा ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस. ठीक है. ये स्टेजेस इंपॉर्टेंट है इफ यू आर वर्किंग इन अ बायोमेडिकल. इफ यू आर वर्किंग इन अ बायोमेडिकल. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप बॉटल बनाओ, चम्मच बनाओ, पटला बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसका आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट. अदरवाइज दूसरा आपको कॉपी करेगा. वो नहीं होना चाहिए. उसके लिए आपको लेना है उसका पेटेंट. उसके लिए आपको लेना है पेटेंट. जब भी आप जाते हो फंड रेज करने के लिए, whenever you go for a funding agency, whenever you go to the funding agency and ask for money, वो बोलते हैं सबसे पहले पेटेंट है. अगर पेटेंट नहीं है तो फंडिंग मिलने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं.
तो अभी आप हो थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, तो व्हाट यू हैव टू डू इन अ थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, एटलीस्ट फाइल अ पेटेंट. पेटेंट मिलने को टाइम लगेगा, बट व्हाटएवर द आइडिया यू हैविंग, व्हाटएवर द प्रोजेक्ट यू आर डूइंग, on that project you are interested in a startup, you have to file a patent of your idea, even though you having just idea, not any working prototype. Then also you have to file a patent. With this filed patent, at least you can apply for the patent. If you don't have anything, don't think on. ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं है, बट अगर पेटेंट है तो that is more valuable. Okay, so what you have to do whenever you think about the funding and startup thing, first file a patent. नहीं तो आपका आइडिया कल कोई चुरा लेगा, वो बना के भेज भी देगा, आप रिसर्च कर लेंगे. ठीक है? So patent is very important. So with this technology, we have around 5 patents granted patent and 1 patent international. We have also applied in USA. So this patent is in process. Also, approvals from the regulatory is in process. एक ethical committee का सर्टिफिकेट भी लगता है आपको, आप किसी पेशेंट भी यूज करते हो कोई डिवाइस, ठीक है, तो एक ethical committee रहती है जो आपको अप्रूवल देती है कि जो काम हम कर रहे हैं वो लीगल काम है, ठीक है. उसके लिए ethical committee का एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो रहेगा तो मैं प्रोडक्ट टेस्ट कर पाऊंगा किसी पेशेंट पे, ठीक है, अदरवाइज. So that is also in processing. Another important is the market. आपको मार्केट पता रहना चाहिए, आपका प्रोडक्ट कहाँ पे बेचे. आपने बॉटल तो बना दिया, but already there are number of players available in the market who are already developing this type of bottle. So what is the important or innovative thing in your bottle as compared to the others? वो इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज आप बना लो बहुत बढ़िया चीज, लेकिन मार्केट में नहीं बिकेगा. सो यू मस्ट हैव टू नो व्हाट इज योर मार्केट. इन माय केस दैट इज द सीएमएम सर्जन जो इसका सर्जरी करते हैं, क्रैनियो मैक्सिलोफेशियल सर्जन, वो मेरा कस्टमर है. उसके बाद प्लास्टिक सर्जन, वो मेरा कस्टमर है. मेडिकल स्टूडेंट जो सर्जरी की प्रैक्टिस करने के लिए इस डिवाइस को खरीदेंगे, सो दे आर द कस्टमर्स फॉर दिस प्रोडक्ट. ऑनलाइन सर्विसेज से या सेल्स से हम ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे. दिस प्रोडक्ट विल बी मार्केट रेडी अराउंड इन 2025 एंड द कॉस्ट ऑफ डिवाइस इज अराउंड 20,000 to 30,000. तो हमारा टारगेट ये है कि जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा, अगर मैं 500 यूनिट बेचता हूँ तो ये 1 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू जनरेट, ठीक है. देन सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर. इस वजह से आपको भी अपना प्लान पता रहना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो. अगर स्टार्टअप के लाइन में बोलो, इफ यू आर गोइंग इन अ स्टार्टअप जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट, कि प्रोफेसर कह रहे हैं, कॉलेज से प्रेशर है, प्रोजेक्ट गाइड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर रहे, स्टार्टअप करो बोल रहे, आप सिर्फ इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो 1 साल में आपका स्टार्टअप कोलैप्स. अगर आप इस जर्नी से नहीं जाते हो तो 1 साल में आपका फाइनल स्टार्टअप कोलैप्स हो जाएगा. तो ये सब चीजें आपको पता करनी चाहिए. अदर देन दिस सर्जरी, these are the different targeted surgery, like नी की सर्जरी होती है, हिप की सर्जरी होती है, वहाँ पे भी हम हमारा डिवाइस यूज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डिजाइन, ठीक है. उसके रिक्वायर्ड डिजाइन चेंज करके हम हमारा स्कोप बढ़ा सकते हैं. आप भी सोच सकते हो कि जैसा मैंने बॉटल का एग्जांपल दिया, बॉटल बाद में कहाँ पे यूज होता है, क्या जो थर्मोस करके यूज होता है, जैसे चाय दूध के करने के लिए, ठीक है. तो these are the different variants of this bottle. These are the, एक बॉटल बना दिया आप बन गए अंबानी, ऐसा नहीं है. एक प्रोडक्ट बनाया और आप बन गए बड़े उद्योगपति, ये नहीं. आपको टाटा ने नैनो बनाया, उसके साथ उसके 10 वेरिएंट भी, ठीक है. ये जब बनेगा तब कंपनी बड़ी हो, ठीक है. एक प्रोडक्ट नहीं भी चला तो दूसरा चलना चाहिए, ठीक है. और बैलेंस में आप प्लस में रहना चाहिए, ठीक है. तब जाकर स्टार्टअप चलेगा, अदरवाइज आपको आपके कॉम्पिटिटर्स पता रहना चाहिए कि कौन कॉम्पिटिटर्स, ठीक है.
मैं बना रहा हूँ तो मैं मतलब ऐसे अलग से तो नहीं हूँ कि कहीं मैं बना सकता हूँ आप नहीं बना सकते हो, मैंने तो पूरा आपको आइडिया बता दिया, आप भी बना सकते हो, ठीक है। आपको आपका आइडिया पता रहना चाहिए और आपके कंपैरेटर्स कौन है, जैसे हमारे पास जो है, जैसे ये 3 लोग हैं, मटेरियलाइजर है, झिलॉक है, ऑस्टियो 3D है, दे आर आल्सो डेवलपिंग द सेम टाइप ऑफ डिवाइसेस, ओके। इफ यू कंपेयर आवर डिवाइसेस विद देयर डिवाइसेस, you can see that the cost of our device is 20,000, that is adjustable surgical guide, and others are also developing in somewhat 21,000, 24,000, 22,000. When you compare this device for the 10 patient, the cost of my device is the same because it is reusable device, and here the cost is 10 times more. हर बार हमको लग रहा है 20,000। मेरे पास जब मैं बनाता हूँ तो मुझे 2 से 3 दिन लगते हैं इसको बनाने के, इनको हर बार 2 से 3 दिन लगते हैं बनाने के लिए, तो डेवलपमेंट टाइम भी उनका ज्यादा है, ठीक है। ये बना रहे हैं प्लास्टिक मटेरियल में, मैं बना रहा हूँ स्टेनलेस स्टील में, तो मेरा स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर्स, ठीक है। उसके बाद इंट्राऑपरेटिव एडजस्टमेंट जो मैंने बताया, अगर सर्जरी के दौरान अगर एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी तो दैट इज पॉसिबल इन माय केस व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन द अदर केस, ओके। तो ये सब पैरामीटर्स हैं जिसके चलते हमारा डिवाइस बाकी लोगों से हम बोलते हैं कि सुपेरियर है। ये जब जस्टिफाई होगा तब हम समझेंगे, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टीम। आप अकेले कितने भी होना हो, आपको सॉफ्टवेयर भी आता है, आपको मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, आपको प्रपोजल राइटिंग भी आता है, आपको पेटेंट का काम भी आपने किया है, लेकिन फिर भी सिंगल पर्सन स्टार्टअप को रन नहीं कर सकता, सिंगल पर्सन स्टार्टअप को रन नहीं कर सकता। आपको आपकी टीम अभी से बनाना है, अभी से। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ द स्टार्टअप, यू मस्ट हैव योर प्रॉपर टीम। मतलब कोई भी आ गया महीने का 10,000 20,000 सैलरी लेके जा रहा है, दैट इज नॉट द टीम, वो टीम नहीं है। टीम मतलब आपके कोर मेंबर जो कंपनी जब तक है, एटलीस्ट जिनको इंटरेस्ट है प्लीज बाहर जाइए, जिनको इंटरेस्ट नहीं है प्लीज बाहर जाइए, एटलीस्ट जिनको सुनना है उनको सुनिए, ठीक है। तो टीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टीम आपका जब से स्टार्टअप चालू होता है या आप सोच रहे हो तब से आपके पास अपनी टीम होनी ही चाहिए। विदाउट टीम आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये एसेट है, जब आप फंड रेज करना चाहते हो, व्हेन यू अप्लाई फॉर एनी ग्रांट, इन दैट आपको उस पे टीम के ऊपर मार्क्स रहते हैं। अगर 100 मार्क्स का आपका प्रपोजल है तो समझ लो 10 मार्क्स का आपका टीम के ऊपर, आपका टीम कितना अच्छा है, तगड़ा है, उसके ऊपर आपको ये मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये मेरी टीम है, ठीक है। उसके बाद आपके एडवाइजर्स कौन, ऐसा तो नहीं आपको मैंने स्टार्टअप बता दिया और आप स्टार्टअप कल से चालू कर दो। आपको एक मेंटर लगेगा जो आपको हमेशा गाइड करता है। मेंटर का मतलब क्या होता है? मेंटर का मतलब वो होता है जो हमेशा आपको गाइड करे। गाइड करे मतलब क्या? कोई भी प्रॉब्लम आए, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा, मे बी इट इज रिलेटेड टू द डिजाइन, इट इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग, इट इज रिलेटेड टू द फिनांस, इट इज रिलेटेड टू द स्पेस फॉर द स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, फंडिंग, प्रपोजल राइटिंग, पेटेंटिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको मदद करेगा। क्यों मदद क्यों चाहिए? बिकॉज आप नए हो, आपको पता नहीं है स्टार्टअप क्या होता है, ठीक है। आप इंजीनियरिंग में जब एडमिशन लिया आपको नहीं पता है कि होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो टीचर आपको ट्रेन करे, ठीक है। सो दैट इज द रोल ऑफ मेंटर, दैट इज द रोल ऑफ मेंटर। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर मेंटर। प्रॉपर मेंटर मतलब जिसको भी एक्सपीरियंस हो। नहीं तो लोगों ने बोला कि स्टार्टअप करो, हम चले स्टार्टअप करें, वो स्टार्टअप फेल हो जाए, इसलिए आपको परमानेंट मेंटर चाहिए। तो हमारे केस पे उदय सर है, VNIT से, कुलकर्णी सर है, उसके बाद ये जो डॉक्टर नितिन बोला है, ये सर्जन है जो पर्टिकुलरली सर्जरी करते हैं। ये सर्जरी करते हैं तभी हमको प्रॉब्लम पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है और इसके लिए सोल्यूशन है। आपका डिवाइस यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, कि खराब है, आपने जो डिजाइन बनाया उसको कुछ काम का नहीं या इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए। जब एंड यूजर यूज करेगा तब आपको पता चलेगा कि क्या अदरवाइज, ठीक है। सो इन माय टीम डॉक्टर नितिन गोला फ्रॉम DMRS Sparta, he is a CMF surgeon and he is using our device. Then Dr. Vidya, he is again from the Tamil. So this is my team.
Another very important thing is the infrastructure. आप जो भी बनाओगे उसको बनाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ चाहिए. अगर नहीं है तो बाहर से बनाने के लिए फंड चाहिए. अगर आप कोई भी फंड लाते हो तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा क्या है? This is my office at VNIT Nagpur. This is my office at VNIT Nagpur and these are the different facilities available in my lab. ठीक है? Different types के printers available है. The cost of complete unit is around 50 to 70 lakh rupees. और ये मुझे मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थ्रू द डिफरेंट ग्रांट्स. ये आपको भी मिल सकता है आप अगर प्रॉपर चैनल से जाते हो तो फंड रेज करते हो. ये आपसे कोई लेके जाने वाला नहीं है. दिस इज योर फाइनल प्रॉपर्टी. दिस इज योर प्रॉपर्टी और द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ ठीक है इतने सालों से, लेकिन प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में नहीं है. तो स्टार्टअप सस्टेन कैसे होगा? मैं खाऊंगा. दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू आर इन फाइनल ईयर नाउ और नेक्स्ट साल इस साल आप पास आउट हो जाओगे. आप जॉब सर्च करोगे और स्टार्टअप में अगर जाना चाहते हो तो स्टार्टअप में जाओगे. स्टार्टअप में तो चले गए, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन मंथली सैलरी नहीं मिल रही तो आपका मोरल कुछ दिनों में डाउन हो जाएगा. क्योंकि आप देखोगे जो आपके साथ वाले वो अच्छा जॉब करके अच्छे जगह पे सेटल हो. ठीक है? तो वहां पे आपको ये जो फंडिंग है ये आपको उसमें सैलरी भी मिलेगी. ठीक है? अगर आपके पास ग्रांट नहीं है तो आपको करना क्या है? जैसे मैंने फैसिलिटी डेवलप किया, मेरे पास 3D प्रिंटर्स है. आई हैव अ प्रिंटर बाय विच आई कैन डेवलप एनी टाइप ऑफ पॉलीमर मटेरियल. कोई भी पॉलीमर का मटेरियल बना सकता हूं. ये फैसिलिटी सेंट्रल इंडिया में सिर्फ मेरे पास है. ये मेरा एक वैल्यू एडिशन है कंपनी. प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता. ठीक है? साइमल्टेनियसली आपको करना क्या है कि आपका कंसल्टेंसी भी चालू करना है जो आपका डे टू डे का खर्च निकालेगा. ठीक है? स्टार्टअप कब सक्सेसफुल होता है? जब रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, तब चलेगा. नहीं तो रिसर्च तो बहुत कर लिया लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में बिक ही नहीं रहा तो सब खराब हो जाएगा. ठीक है? तो स्टार्टअप करते करते आपको ये फैसिलिटी भी डेवलप करना है जिससे जाके आपको कुछ पैसा आप कमा सकते हैं. ठीक है? तो these are the different printers, 3D scanners are available in my lab by which we generate them. Okay? Again, we are incubated in the VNIT Nagpur. What is the meaning of incubated का मतलब है आपको इंक्यूबेशन पता है? इंक्यूबेटर पता है? इंक्यूबेटर आपने सुना होगा. इंक्यूबेटर में रखा. छोटा बच्चे का जन्म होता है, बहुत बार प्रॉब्लम होता है कुछ, तो उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं. इंक्यूबेटर का मतलब है एक पेटी में रखते हैं. आपने देखा होगा, सुना होगा. आपने देखा है? Have you seen this device incubator? इंक्यूबेटर किस लिए यूज करते हैं? अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस बॉक्स में उसको रखा जाता है सो दैट उसको प्रॉपर ऑक्सीजन दे सके, प्रॉपर उसको कुछ और चीजें चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, तो उस बॉक्स में उसको रखते हैं सो दैट उसको मतलब उसके एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं कि जैसे वो पेट के अंदर रहता वैसा एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट करते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि वो बर्थ होने के बाद नॉर्मल कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर पाता. उस केस में वहाँ पे उसके लिए वैसा एक सुटेबल कंडीशन बनाते हैं. दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज द इंक्यूबेटर. हाँ, उसको इंक्यूबेटर कहते हैं. ये भी सेम है. हम भी छोटे बच्चे हैं जिसका जन्म अभी हुआ है. इन द केस ऑफ स्टार्टअप में हम नए हैं, अभी पैदा हो गए स्टार्टअप. ठीक है? या कदम रखा है हमने नए दुनिया में, तो हमें आइडिया नहीं है किसी चीज का. स्टार्टअप क्या होता है, फंडिंग कहाँ से होती है, प्रपोजल कैसे लिखना है, पिच करना है तो पिच कैसे करेंगे. अगर मैं इन्वेस्टर के पास जाता हूँ पैसा मांगने तो उसको मैं मेरा डिवाइस कैसे समझा के बताऊंगा कि वो मुझे पैसा दे. ठीक है? तो उसको जो सपोर्ट करता है, जो सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंक्यूबेटर. तो आई हैव इंक्यूबेटेड एट CIL VNIT नागपुर. CIL के हमारा एक सेंटर है, सेंटर फॉर इनोवेशन करके VNIT. ठीक है? तो ये क्या करते हैं, जो फैसिलिटी लगती है, जैसे स्पेस लग रहा, मुझे कंपनी चलाऊंगा तो कहीं ना कहीं जगह लगेंगी, इंटरनेट लगेगा, कंप्यूटर्स लगेंगे, कुछ वहाँ पे कॉमन सिस्टम लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. मैं अकेला एक बड़ी मशीन नहीं खरीद सकता हूँ. ठीक है? तो इंक्यूबेटर फैसिलिटी डेवलप करके देता है, कॉमन फैसिलिटी कि जैसे मेरे जैसे 10 स्टार्टअप वहाँ पे है, वो स्टार्टअप भी उसका यूज करें.
ठीक है, कुछ पैसे देके, नॉमिनल चार्ज देके, ठीक है। तो दैट इज द रोल ऑफ इंक्यूबेटर। वो आपके लिए वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं कि फाइनेंस क्या होता है, फंडिंग क्या होती है, पिचिंग कैसे करना है, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो आपको व्हेनेवर यू थिंक अबाउट द स्टार्टअप, यू हैव इंक्यूबेट योर कंपनी इन any incubator. In Nagpur, there are number of incubators available in our VNIT, CIBM. Then I think every college is having nowadays academic incubation center. Okay, so these are the facility available in VNIT Nagpur that we can use, I can use for my students. So these are the different models. These are the different products of my company, like anatomical models. We can develop it in plastic material by using 3D printing. For variety of the surgeries. Again, surgical planning, we are having a variety of biomedical softwares available in our company by which we can give us services of the surgical planning, designing of this particular surgical guides, then implants. These are the surgical guides for the various surgeries. Customized implants. Then finite element analysis on anatomy. This adjustable guide. This is the 3D printing facility available by which you can perform or fabricate part in number of variety of materials, like from normal ABS material to the PEEK material. This is the highest grade of plastic. That facility is available in my company. This is resin-based printer. Generally used the dental person. In this particular machine, biocompatible, different biocompatible materials are also available. This facility is available in our center. Then 3D scanning or reverse engineering. This facility available. And these are our achievements. These are our achievements. We got Viram 50 lakh. Then I also got Phoenix Innovation Award in the clinical side, around 1,000 rupees euros. And these 3 different grants, 2.5, 10 and 89 lakhs for the last version of the device. We have consumed this much of amount, but till our product not in a market. And still we require another 3 to 4 crore rupees for the clinical trials. So again I am fighting for the new money. So if you want to enter into the biomedical, so this much vast area and you have to struggle with that. So I am applying for different grants like SIBRI. Yesterday only I have finished the first SIBRI grant. This grant is around 1 crore rupees for the clinical trial. Whatever the device we have developed, that will go into the clinical side for the testing. Then I am also searching the investor who can invest in my product. Then trying for developing the manufacturing setup, regulatory approvals, and then entry into the market. So this is the long path. This is the long path. This is the final topic. I will free you within next 10 to 15 minutes. That incubator, what is the role of that particular incubator? I have already told you. Incubator gives you a space. Then other facilities related to the your product or fabrication or development you are. Not only the facility, but the main important thing is the mentors. Main important thing is the mentors. There are different resources that require to run a startup, or there are different resources required for to run a startup. Out of that, this accelerator or incubation programs or incubator, these are the 2 important aspects. आपको कोई डायरेक्टली नहीं बताएगा कि स्टार्टअप करो. अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप इंक्यूबेशन सेंटर में जाते हो, आप देखोगे वहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं. और इंक्यूबेशन सेंटर का काम ही यही है, जैसे आपके टीचर का काम है आपको पढ़ाना. जैसे डिजाइन सब्जेक्ट वाले सर डिजाइन ही पढ़ाएंगे, ठीक है, हीट ट्रांसफर वाले हीट ट्रांसफर पढ़ाएंगे. यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर वालों का काम है आपको स्टार्टअप से रिलेटेड नॉलेज.
स्टार्टअप का नॉलेज मतलब पिचिंग कैसे करना है, इन्वेस्टर के पास जाते हो पैसे मांगने के लिए, उसको पिच कैसे करना है, उसको इम्प्रेस कैसे करना है कि वो आपको फंड दे आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। उसके बाद कोई डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का आपको नॉलेज नहीं है तो उसके वर्कशॉप कंडक्ट करेगा। फिनांस का नॉलेज आपको नहीं है, सीए का क्या है, कंपनी का कैसे एनरोल करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, उद्यम आधार क्या होता है, उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए या एलएलपी होना चाहिए, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कौन बताएगा आपको, आप जब वैसे वर्कशॉप अटेंड करोगे, ठीक है। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी नंबर क्या होता है, जीएसटी इन क्या होता है, जीएसटी आउट क्या होता है, आपको टैक्सेस कैसे भरने हैं, टीडीएस कहाँ पे कटता है, आपको इनवॉइस कैसे जनरेट करना है, ये सब चीजें आप वहां पे जाके सीखोगे। फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होगी, सीए को कैसे हैंडल करना है, सीए का रोल क्या है, ऑडिट कैसे होता है कंपनी का, ये सब चीजें आपको कौन बताएगा, उसके लिए कोई एक्सपर्ट लगेगा और वो एक्सपर्ट है आपका इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर क्या करेगा, आपको वहां पे उस एक्सपर्ट को पर्टिकुलरली लाएगा। जैसे आपको पेटेंट फाइल करना है, आपको पेटेंट का कुछ पता है नहीं पता है जो भी, ठीक है, तो वहां पे एक पेटेंट एक्सपर्ट आएगा, वो बताएगा कि पेटेंट को कैसा फाइल करना है, उसके लिए क्या लगता है, ठीक है। तो इसके अलग अलग वर्कशॉप होते हैं, फाइनेंस के वर्कशॉप होते हैं, टीचिंग के वर्कशॉप होते हैं, वो आपको फैसिलिटी डेवलप करता है। जैसा हमारा सीआईएल सेंटर है, एक नॉमिनल चार्ज लेता है 3000 रुपीज पर मंथ, 3000 रुपीज में स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई और जो भी फैसिलिटी गेट में अवेलेबल है वो मैं यूज कर सकता हूँ। आप भी नए हो स्टार्टअप, आप खुद के जेब से पैसे नहीं लगा सकते, ठीक है, या आपके घर से इतना पैसा नहीं देगा, मे भी दे भी सकेंगे लेकिन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको इंक्यूबेशन सेंटर में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। इवन व्हेनेवर यू गो फॉर द फंड रेजिंग, वहां पे भी वो देखते हैं कि आप किसी इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर्ड हो कि नहीं। क्यों ऐसा देखते हैं, आप इंडिविजुअल हो, आप कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं हो और आपको 50 लाख दे दिया और आप कल से जा रहे हैं, आपका सिक्योरिटी कौन देगा, ठीक है। इफ यू आर रजिस्टर्ड इन समवेयर तो एक आपका ट्रस्ट रहता है वहां पे, ठीक है, इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए। बाकी फैसिलिटीज आपको बाहर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इंक्यूबेशन सेंटर, तो दैट इज द रोल ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर। दिस इंक्यूबेशन सेंटर, दिस फैसिलिटी, ये जो इंक्यूबेशन सेंटर का रोल है, इट इज कॉमन फॉर स्टूडेंट्स हो, फैकल्टीज हो या जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप हो, इन सबको लगेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेटर एंड इंक्यूबेशन सेंटर? एक्सेलरेटर ये है कि जो आपके साथ कम समय के लिए है, ठीक है, दे आर अराउंड विद यू 3 to 6 months, 3 to 6 months। एक्सेलरेटर वो है जो आपके साथ अराउंड 3 to 6 months के पीरियड, टाइम पीरियड कम हो जाता है, वो भी सेम सपोर्ट करते हैं जैसा इंक्यूबेशन सेंटर आपको सपोर्ट करता है। लेकिन बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेटर एज वेल एज द इंक्यूबेटर इज दैट इनको चाहिए क्या, एक्सेलरेटर टिपिकली टेक अ स्मॉल इक्विटी स्टेक इन द कंपनी, वो आपके कंपनी का कुछ परसेंटेज है, भले ही आपकी कंपनी अभी प्रोडक्ट नहीं बेचती, ठीक है, लेकिन 5%, 10% उनका जो भी इक्विटी उन्होंने लिया है और जब मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा तब वो 5%, 10% उनको मिलते रहेंगे। सो एक्सेलरेटर टिपिकली टेक अ स्मॉल इक्विटी स्टेक इन अ स्टार्टअप। और इंक्यूबेशन सेंटर क्या करेगा, इंक्यूबेशन सेंटर आपसे कोई स्टेक नहीं लेगा, वो आपसे चार्ज लेगा मंथली 3,000 रुपीज, 10,000 जो भी उनका डिसाइडेड है, पर वो आपके इसमें नहीं इन्वॉल्व होगा। बाकी ये मेंटरशिप देंगे, पिचिंग करेंगे, रिसोर्सेज देंगे, दैट इज कॉमन इन एक्सेलरेटर एज वेल एज द इंक्यूबेटर, ठीक है। और जो इंक्यूबेटर है इनका टाइम पीरियड ज्यादा रहेगा, वो आपके साथ 3 to 6 months रहेंगे एक्सेलरेटर, और इंक्यूबेटर आपके साथ 6 to 24 months रहेंगे, उससे ज्यादा रहेगा, ठीक है। बट इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट होना दैट इज नॉट द फाइनल स्टेज ऑफ योर स्टार्टअप। स्टार्टअप बना लिया ये बहुत नहीं है, इंक्यूबेशन सेंटर में आप जा रहे हो, दैट इज द ओनली स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज ओनली स्टार्टिंग पॉइंट। एक बार आपका प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, प्रोडक्ट मार्केट में जाता है, देन यू हैव टू मूव फ्रॉम द इंक्यूबेशन सेंटर एंड स्टार्ट योर फुल प्रूफ कंपनी। आपको आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, आपका एक कंपनी खोलना पड़ेगा, ठीक है। आप परमानेंटली इंक्यूबेशन सेंटर में नहीं रह सकते हो, वहां पे लिमिट है
जैसे यहाँ पे मैंने बोला है कि 6 to 24 मंथ्स का लिमिट है, थोड़ा 1-2 साल ज्यादा भी हो सकता है, बट आफ्टर ऑल वंस यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड योर प्रोडक्ट इज इन मार्केट, देन एट दैट टाइम यू हैव टू मूव फ्रॉम दैट इंक्यूबेशन सेंटर टू योर ओरिजिनल प्लेस, ओके, एंड देयर विल बी योर फुल-प्रूफ कंपनी. Again, incubator offers range of resources like office space, equipment, legal, accounting services, that all facilities they also provide. Also, educational opportunities such as workshop, classes, topics such as marketing, rules and regulation, उससे related सब knowledge वहाँ के experts से आपको मिलेगा. So, कौन से incubation center है? Have you heard? नो एनी इंक्यूबेशन सेंटर. एक तो मैंने बताया CIIT नागपुर, ठीक है, एक इंक्यूबेशन सेंटर है. उसके बाद एक मुझे जो पता है मैं आपको बताता हूँ, एक NCL करके नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, उनका एक वेंचर सेंटर करके है, ठीक है, वो फुल-प्रूफ इंक्यूबेशन सेंटर है. DNIT का इंक्यूबेशन सेंटर छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन NCL वेंचर सेंटर एक बहुत बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर है. आपको अगर फ्यूचर में कभी चांस आता है इंक्यूबेशन सेंटर देखने का या पुणे जाने का, तो डेफिनेटली विजिट दैट वेंचर सेंटर पुणे. आपको एक स्पार्क आ जाएगा, आपको एक स्पार्क आएगा स्टार्टअप में, वहाँ के स्टार्टअप आपके एज के स्टूडेंट्स, ठीक है, जो रिसेंटली पास आउट हो गए, उनके पास 50-50 लाख का 1-1 करोड़ का ग्रांट है और वो सक्सेसफुली अपना स्टार्टअप कर रहे हैं. वो कब चालू करते हैं स्टार्टअप करना आपको पता है? आप अभी फाइनल ईयर में हो, अभी मिड ऑफ द ईयर चालू है और विद इन नेक्स्ट 6 months to 8 months यू विल बी ग्रेजुएटेड, ओके. अभी आप सोच रहे हो कि मैं स्टार्टअप करूं नहीं करूं, क्या करूं. उन लोगों का स्टार्टअप चालू हो जाता है सेकंड ईयर से. वो अपना स्टार्टअप वहां पे रन करना चालू कर देते हैं. एट द एंड ऑफ देयर डिग्री, एट द एंड ऑफ देयर डिग्री उनका प्रोडक्ट भी मार्केट में, ठीक है. बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है कोई भी ग्रांट को अप्लाई करने के लिए, एटलीस्ट कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन. अभी आपका ग्रेजुएशन हुआ नहीं, ठीक है, आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आप फाइनल ईयर में भी हो गए, लेकिन अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए भी स्कीम है. आप फाइनल ईयर में रहते हुए भी अप्लाई कर सकते हो, मैं बताता हूँ, ठीक है. तो दैट इज द रोल ऑफ इंक्यूबेशन एंड द एक्सेलरेटर, ठीक है. These are the different funding opportunity, ठीक है. आपको करना क्या है, आज अभी करो, सेशन खत्म होने के बाद आपको गूगल करो और वहां पे बिराक करो, ठीक है. बिराक क्या है? बायोमेडिकल इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल. आप बिराक की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे दिखेगा आपको कॉल फॉर प्रपोजल्स, कॉल फॉर प्रपोजल. उसमें रहते हैं डिफरेंट कॉल्स, जो भी कॉल करंटली चालू है, कोई भी जगह पे ये निकलता है, जॉब का रिक्वायरमेंट निकलता है, एडवर्टाइजमेंट निकलती है, ठीक है. तो सेम ये भी है कि कॉल फॉर प्रपोजल, प्रपोजल के लिए कॉल आया, ठीक है. तो उस समय पे कौन सा कॉल चालू है, आप कोई भी कॉल में नहीं डाल सकते. इफ यू आर वर्किंग इन अ बायोमेडिकल डोमेन, ठीक है, आपके पास बायोमेडिकल डिवाइसेस का कुछ प्लान है, जैसा मैंने मेरे प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया, तो उसका अगर कॉल चालू है तो उसमें सिर्फ वो पर्टिकुलर डोमेन के लोग ही जा सकते हैं, ठीक है. अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, आपने कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ बना, ठीक है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई दूसरा स्कीम आएगा, उसमें एग्रीकल्चर वाला जाएगा, ठीक है. आपके पास कोई सोशल वाला प्रॉब्लम, आप कोई सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई पानी पड़ा है बाहर में, उसमें मच्छर बहुत हो रहे हैं, उसमें कोई डिवाइस आपने बनाया कि मच्छर ना आए, इस टाइप का फॉर एग्जांपल. तो ये हो गया सोशल प्रॉब्लम के साथ आप डील कर रहे हो. सोशल प्रॉब्लम के लिए अलग ग्रांट्स मिलेंगे, ठीक है. तो आपको करना क्या है कि आपका प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में आता है, ये सबसे पहले देखना है, ठीक है. दिस इज नॉट द ओनली फंडिंग एजेंसी, ठीक है. दीज आर डिफरेंट फंडिंग एजेंसी आल्सो. MCD, महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ग्रांट देते हैं. साइकिल बनाओगे उसके लिए अलग ग्रांट, ठीक है. कोई CNG वाली कार बनाओ उसके लिए अलग ग्रांट है. आप कोई एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्ट है उसके लिए अलग ग्रांट है, मेडिकल वाला है उसके लिए अलग ग्रांट है. 1 लाख 2 लाख 50,000 से स्टार्ट होता है. आपको, आप अभी स्टूडेंट हो, उसके लिए एक ग्रांट है निधि EIR. निधि EIR गूगल करना है, ठीक है. निधि EIR क्या करता है, आप जैसे जो बच्चे अभी जस्ट पास आउट हो रहे हैं, इनको एक स्टाइपेंड देते हैं, ठीक है. इनको एक स्टाइपेंड देते हैं और कुछ अमाउंट देते हैं प्रोडक्ट बनाने. प्रोडक्ट बनाना मतलब क्या, प्रोडक्ट बनाना मतलब क्या,
आपको ये माइक बनाना है या बॉटल का एग्जांपल लेते हैं वापस, अगर आपको बॉटल बनाना है, आपको अगर 2 लाख रुपए दिए तो पूरा बॉटल 2 लाख में बना देना है, ऐसा नहीं। इसके स्टेजेस है, ठीक है। जैसे आइडिया जनरेशन एक स्टेज है। अगर आपके पास सिंपल आइडिया, इफ यू हैव अ सिंपल आइडिया, आप वो आइडिया लॉन्च करते हो, अकॉर्डिंग टू योर आइडिया यू विल गेट अराउंड 2 to 5 लाख रुपए सिर्फ आइडिया के लिए। तो आइडिया तो है, तो आइडिया दिमाग में नहीं रखना है। वो आइडिया जब आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो 5 लाख रुपए में आप क्या करोगे, आइडिया को कन्वर्ट करेंगे एक मॉडल में। वो रफ मॉडल होगा, रॉ मॉडल होगा, कुछ भी होगा, बट योर आइडिया, आपका आइडिया जो है वो ट्रांसफर होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, जो मैं हाथ में पकड़ सकता हूँ, या फिर कोई एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम बेस्ड होगा तो प्रोग्राम का ऐप बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, सिर्फ आइडिया, आपका आइडिया था, वो आइडिया को आपने एक वर्किंग प्रोडक्ट बना दिया 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन वो प्रोडक्ट कुछ काम करे, सिर्फ दिखाने के काम का है कि ये मेरा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। वो हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज। उसके बाद आती है, उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। आपके पास सिर्फ एक आइडिया था, उससे आपने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द वर्किंग प्रोडक्ट डेवलप। आपके पास आइडिया था, उसने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया, उसके लिए नेक्स्ट फंडिंग है, उसके लिए वापस अप्लाई करो। जो बीआईजी का ग्रांट मिला था 50 लाख रुपए का, उसमें सिर्फ मैंने वो उतना बनाया, क्योंकि उतना ही पॉसिबल है, लिमिट रहता है। 1 साल में आपको, 1-1.5 साल में आपको फंडिंग यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट है आइडिया स्टेज के लिए अलग है, उसके बाद वर्किंग प्रोटोटाइप के अलग है। एक बार प्रोटोटाइप बन गया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसका टेस्टिंग करोगे। गाड़ी बनाया तो गाड़ी चलती है कि नहीं चलती है, अब ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्टिंग करोगे तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज लगेंगे, आप उसको कहीं ये करके देखोगे, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए आपको अलग फंडिंग मिलेगी। अगर टेस्टिंग हो गया, सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गया, उसके रिजल्ट्स आएंगे, आप वापस अप्लाई करोगे। अभी आप क्या बोलोगे, सर टेस्टिंग भी हो गया, प्रोडक्ट भी बन गया, अभी मुझे बड़ा लार्ज स्केल करना है, स्केलिंग करना है, ठीक है। स्केलिंग के लिए अलग से फंडिंग मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सेटअप डालना है, उसके लिए आपको अलग से फंडिंग मिलेगा। तो ईच एंड एवरी स्टेज फंडिंग इज अवेलेबल, लेकिन आपको एक स्टेप क्रॉस करते हुए उस स्टेप पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट ग्रांट्स अवेलेबल इन द भारत। यू कैन सी दैट बायोनेस करके इनका एक प्रोग्राम है, ये आपके लिए नहीं, बायोनेस इज फॉर द फैकल्टीज। बायोनेस किसके लिए, जो फैकल्टी मेंबर्स है, जो कॉलेज है, एसपीजे कॉलेज कैन अप्लाई फॉर द बायोनेस ग्रांट। तो बायोनेस अगर इनके पास आता है तो इससे क्या होगा, बायोनेस अगर एसपीजे में आता है तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर बना सकते हैं। दैट ग्रांट इज और द इंक्यूबेशन सेंटर का, ठीक है। इंक्यूबेशन सेंटर आएगा, आप जैसे जो बच्चे जो स्टार्टअप करना चाहते हो वो स्टार्टअप पे वहां पे रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रांट है अराउंड 6 करोड़ का ग्रांट है, ठीक है। 6 करोड़ ये जो फैसिलिटी डेवलप करेंगे वो आप यूज कर सकते हैं। So that is for the faculty. Another very important, this is for you. When आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, you can apply for the ideation to early stage. आप इस स्टेज पे हो अभी, ideation to early stage. अभी आपको अप्लाई करना है at this moment in your final year. You can apply for the EUA. Just go to the Virat and check for EUA. आप EUA में अप्लाई कर सकते हो। This grant is around I think 10 to 20 लाख रुपए का ग्रांट है ये EUA। जो मैंने अप्लाई किया था वो ग्रांट था BIG। ये ग्रेजुएशन होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो BIG, बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट, दैट इज अराउंड 50 लाख रुपए ग्रांट। देन अभी मेरा अर्ली स्टेज खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गया हूं, आइडिएशन टू लेट स्टेज, दैट ग्रांट इज फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस, दैट इज द DITP एंड सिब्रिक। ये 1-1 करोड़ के ग्रांट्स है, ठीक है। ये टेस्टिंग के लिए पर्टिकुलर। उसके बाद अगर आपका प्रोजेक्ट सोशल इनोवेशन है, उसके लिए इक्विटी फंडिंग चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में, इक्विटी आपको तब देगा कोई जब उसको उसमें कुछ ना कुछ दिखा, उसको लगेगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बिक सकता है, तब जाके वो आपका इक्विटी लेगा। इक्विटी का मतलब उसमें आपको कुछ परसेंटेज डालना है, या वो प्रोडक्ट बिकने के बाद आपसे कुछ परसेंटेज लेगा। अगर 100 रुपए में प्रोडक्ट बिकता है तो 20 रुपए 30 रुपए वो लेगा, दैट इज कॉल्ड इक्विटी फंडिंग। तो इसके लिए सीड फंड, लीड फंड और केस फंड, ये फंड्स अवेलेबल, ठीक है। ये फंड 30 लाख 50 लाख और 1 करोड़ का ऐसे ही ग्रांट्स रहते हैं, इक्विटी फंडिंग। जैसे उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट बन गया, उसको
उसको मार्केट में लाना है, उसकी मार्केटिंग करना है, ठीक है, वेबसाइट बनाना है, उसका मार्केटिंग करना है, आपको कुछ कस्टमर रखने हैं, आपके मैनेजर रखने हैं मार्केटिंग के लिए, तो दैट इज फॉर प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम फंड। इसके लिए आपको 1 से 2 करोड़ का ग्रांट मिलेगा, ठीक है, और कमर्शियलाइजेशन ऑफ योर प्रोडक्ट। Other than BIRAC, these are the different funding agencies like Maharashtra Center for Entrepreneurship Development, then DST, UGC, CSIR, DBT और स्टार्टअप इंडिया सबको पता है, ठीक है। ये अलग-अलग स्कीम्स है जिसमें से आपको आपके प्रोडक्ट के लिए फंडिंग मिल सकती है अगर आप स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हो। तो आपको करना क्या है, चालू कैसा है, बता दो सब निकल गया, आगे करना क्या है। सबसे पहले आपको फोकस करना है एज पर लर्न एज मच एज टेक्नोलॉजी, जितना हो सके उतना आप टेक्नोलॉजी आपको पता रहना चाहिए, एटलीस्ट रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। जैसे मैं 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करता हूँ तो मुझे 3D प्रिंटिंग का पता है, ठीक है। आप अगर कोई दूसरे इसके करते हो आपको वो टेक्नोलॉजी पता रहना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे कि मैं स्टार्टअप करता हूँ, बता मुझे पूरा जीरो से चालू करता हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। सो लर्न एज मच एज टेक्नोलॉजी यू कैन, लाइक आरपी, टर्निंग, बिल्डिंग, मीडिंग, प्रोग्रामिंग वाले होंगे तो प्रोग्रामिंग, कोडिंग, पीसीबी डिजाइनिंग, दैट अगेन फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द स्टूडेंट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एंड आफ्टर ग्रेजुएशन। आपको ये स्कीम अभी से पता रहना चाहिए कि अभी मेरे लिए कौन सी है, पास आउट होगा तो कौन सी है। वुमेन्स के लिए स्पेशल ग्रांट्स होती है, ठीक है, वुमेन्स के लिए स्पेशल ग्रांट्स होती है, आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। अटेंड एज मच एज सेमिनार, वेबिनार, ट्रेनिंग, वर्कशॉप रिलेटेड टू द स्टार्टअप, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। अभी आपने ये आज का लेक्चर अटेंड किया, एटलीस्ट आपको 2% नॉलेज है, एटलीस्ट 2% नॉलेज है कि स्टार्टअप क्या होता है, इंक्यूबेशन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या रहता है, उसके क्या स्टेजेस होते हैं, कौन से स्कीम्स होते हैं, गवर्नमेंट कितना पैसा देती है, ठीक है, एटलीस्ट आपको नॉलेज है। तो जितना हो सके उतने सेमिनार, वर्कशॉप अटेंड करिए। अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड फॉर द स्टार्टअप, लाइक DIPT क्या है। अगर आप स्टार्टअप है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ स्टार्टअप। अगर आप प्लीज बात मत करिए, अगर स्टार्टअप आप रजिस्टर कर रहे हो तो स्टार्टअप रजिस्टर करने के क्या फायदा, स्टार्टअप रजिस्टर करने के क्या फायदा, आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। स्टार्टअप में तो स्टार्टअप कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये सब चीजें आपको कब पता चलेगी, व्हेन यू इन्वॉल्व इन द स्टार्टअप, ठीक है। आपको GST में कंसेशन मिलता है, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, मशीन खरीद लिया फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के लिए, उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन से चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे DRGP मैंने बताया, उद्योग आधार लगता है, कोई स्कीम आप अप्लाई करते हो, IEC लगता है, इथिकल कमिटी सर्टिफिकेट, या फिर जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, जैसे मेरे मशीन का जो मटेरियल है वो US से आता है, उसके लिए मेरे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है। आपके पास पैसा डॉक्यूमेंट लगेगा जब आप समझ लो कोई बाहर का जरा उसका मटेरियल के बाहर से आता है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। GST सर्टिफिकेट चाहिए, GST सर्टिफिकेट नहीं रहा तो GST इन आपके पास नहीं आएगा। आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, तो उसका GST का अमाउंट कहाँ पे जाएगा। आप परचेस करते हो तो एक बार GST देते हो, जब आप सेल करते हो वो भी GST आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये GST से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद डू एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट। आप जो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टडी प्रोजेक्ट करते हैं, स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। उससे अच्छा आप अगर कोई एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं एक बॉटल बनाने का प्रोजेक्ट करता हूँ, इसको इंजेक्शन मोल्डिंग या ब्लो मोल्डिंग जो भी लगता है उससे रिलेटेड आपको अगर नॉलेज आएगा तो आप ब्लो मोल्डिंग का कंपनी डाल सकते हो। इस साइड का आप एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट कर सकते हो, सो दैट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम, जैसे मेरा PhD का प्रोजेक्ट था सर्जिकल गाइड, वो सर्जिकल गाइड से मैंने कन्वर्ट किया उसको एक प्रोडक्ट करके और स्टार्टअप लाइन पकड़, ठीक है। आप अपना प्रोजेक्ट ऐसा सिलेक्ट कर सकते हो कि जिसको प्रोडक्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसका बेस कहाँ से चालू होगा, आपको पहले से ही पता रहना चाहिए कि मैं कौन सा प्रोडक्ट पकड़ूं और
उससे आगे क्या. So do application based projects in final year so that you can convert it into the business. Do more experimentation, analysis and industry based work in the project. आप ग्रेजुएट हो जाते हो, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हो और आपको ड्रिल पैसा मारना ये भी नहीं. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? आप सिर्फ बुक्स पढ़ते हो और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए. इसलिए आप जितना कनेक्टेड हो गए इंडस्ट्री से उतने काम आपको समझे. इंटर्नशिप करो कहीं पे जाके, पेमेंट की चिंता मत करो. 1000-2000 रुपए या जीरो पे भी काम करो, वो नॉलेज लेने के लिए. ठीक है, सो डू मोर एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस एंड इंडस्ट्री बेस्ड वर्क इन द प्रोजेक्ट. और सबसे इंपॉर्टेंट है फाइल द पेटेंट. पेटेंट फाइल करो, रिसर्च पेपर पब्लिश करो अपने काम से रिलेटेड. ठीक है, फाइल पेटेंट एंड पब्लिश रिसर्च पेपर ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन. फाइंड आउट योर टीम एंड मेंटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको क्या लगता है कि मैंने स्टार्टअप चालू कर दिया, ये मेरा दोस्त है, इसको बुला लूंगा, कैड करने डिजाइनिंग के लिए इसको बुलाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको करूंगा, एमआईटी में मेरे काका का ये है, मैं वहां से बुला लूंगा. इंडस्ट्री में ऐसा काम नहीं होता. आपको हर एक आदमी एक्सपर्ट चाहिए आपके टीम में. एटलीस्ट जो कोर टीम है, जो 2-3-4 लोग आपके कोर है, जिनका एक दूसरे से प्रॉपर एज अ टीम कनेक्शन, वो लोग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे. आपके जो एम्प्लॉयज है वो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो कोर टीम है ये हमेशा साथ में रहेंगे. इसलिए आपके जो 2-4 बंदे हैं वो हमेशा आपके टीम है, वो हो गई आपकी कोर टीम. वो हमेशा वैसी ही रहेगी, क्योंकि अकेला आदमी इंडस्ट्री नहीं संभालता. डू द मार्केट एनालिसिस रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट. बॉटल बना दिया लेकिन मार्केट में नहीं बिकेगा अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इनोवेटिव नहीं है, आपको पता ही नहीं है मार्केट में क्या रिक्वायर्ड है और आपने बना दिया, वो मार्केट में नहीं चलेगा. प्लान द अदर रिलेटेड प्रोडक्ट और बिजनेस. सबसे इंपॉर्टेंट है. मैंने सर्जिकल गाइड बना दिया, लेकिन अभी कितना हो गया, 2020 से हमने स्टार्टअप चालू किया, 2020 से हमने स्टार्टअप चालू किया और अभी भी प्रोडक्ट क्लिनिकल ट्रायल, और 1-2 साल लगेगी क्लिनिकल ट्रायल को. उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट में आएगा और उसके बाद मार्केट में आने के बाद अगर वो नहीं चला तो 5 साल का 6 साल का मेहनत. ठीक है, उसके लिए आपको टैगुलर रिसोर्स आपका डेवलप करना. ये मेरा एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता बाकी स्टार्टअप वाले क्या बोलते हैं, बट इट इज माय एक्सपीरियंस. साइमल्टेनियसली यू हैव टू प्लान द अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ द बिजनेस. जैसे मेरे पास मैंने जो मशीन्स जनरेट किए हैं, एप्लीकेशन का फैसिलिटी डेवलप किया है, कंसल्टेंसी का काम किया है, उससे मैं मेरा स्टार्टअप सस्टेन कर सकता हूं. अदरवाइज कल चल के आपके एम्प्लॉय आपको सैलरी मांगेगी, आपके पास ऐसा सिचुएशन आएगा, आप बीच में हो, एक ग्रांट आपका खत्म हो गया, नेक्स्ट ग्रांट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं है, टीचिंग चालू है. ठीक है, और बीच का जो टाइम जाता है 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, तब आपके पास फंडिंग नहीं. उस समय में एम्प्लॉय आपसे निकल जाएंगे क्योंकि उनको भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ठीक है, आपका स्टार्टअप है, आप सही नहीं भागोगे, एक टाइम बना पाओगे लेकिन स्टार्टअप पे रहोगे, लेकिन आपके जो एम्प्लॉयज है वो भाग रहे हैं, वो नहीं रहेंगे उस ड्यूरेशन के साथ. ठीक है, इसके लिए आपको साइमल्टेनियसली आपका एक फैसिलिटी डेवलप करना है जिससे आपका रिटेन पता चले, आपके एम्प्लॉयज का सैलरी. ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉर द टीचर्स जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, उनके टीचर्स शुड एनकरेज, सपोर्ट, एजुकेट, हेल्प द स्टूडेंट ऑन दिस वर्क. ओके, थैंक यू. This is my contact number. You can anytime visit to my office if you want any help related to the startup, related to the technology, any project related ideas or startup related ideas. You are always welcome.
वो नॉलेज कभी क्लियर ही नहीं होगा। उससे अच्छा पूछ लो, मुझे जो पता है वो बता देगा, आप उसको रिफाइन कर सकते हो किसी और एक्सपर्ट से। तो सर को सर इज वेरी बिजी, अगर आप वहाँ पे पास मिले जाते हो आपको मे भी टाइम नहीं मिलेगा। दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो भी पूछो। हाँ, कोई भी क्वेश्चन चलेंगे। अच्छा, आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड कोई प्रोजेक्ट कर रहा है? थोड़ा लाउडली। Actually, it was the meeting. As we are working on electronic and mechanical. थोड़ा इधर आ जाओ, स्पीकर से दूर आ जाओ। Sir, the product is based on electronic health records. We are now, just now it was published, it was my patent, idea patent. So we are doing on it. And, it depends on how your records will get carried to you. Your records, medical history, your personal history. It is app. It's a kind of app plus hardware software. So you can also get the grants related to your product. Okay, so you have to apply for particular domain. जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया, आप ऐप बना रहे हो, इट इज अगेन रिलेटेड टू द मेडिकल। आप क्या कर रहे हो, आपने बोला कि मैं मेडिकल का डेटा कुछ कलेक्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, इट इज अगेन रिलेटेड टू द मेडिकल डोमेन। तो आप पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पीएचडी बायोमेडिकल से रिलेटेड जो भी है आप उसमें डालते हो। वन इट इज अ ऐप बेस्ड डिवाइस। आपने पेटेंट किया है वो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया कि जैसे टीम में 10 मार्क्स है आउट ऑफ 100, पेटेंट में भी आउट ऑफ 100 10 मार्क्स है, ठीक है। ये मतलब जो चीजें है वो सब काउंटिंग होगा। पेटेंट कितना है या पेटेंट है या नहीं है, या आइडिया है जो भी है, उसके बाद टीम कैसा है आपका, आपके पास क्या फैसिलिटीज है, इन सब पे मार्क्स होते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा आपके आपने देखा कि मेरा वर्क जो है इट इज ऑल रिलेटेड टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इवन दो आई एम वर्किंग इन द बायोमेडिकल डोमेन, बट व्हाटएवर आई हैव डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड इट इज ऑल रिलेटेड टू द मैकेनिकल साइड ओनली। जो सर्जिकल वाला है वो सर्जिकल का सर्जरी वर्ड निकाल दो तो पूरा मैकेनिकल ही है। कटिंग का प्रोसीजर है, इट इज जस्ट लाइक अ कार्पेंटरी, नथिंग एल्स। वहां पे लकड़ा कट करना कार्पेंटरी में, यहाँ पे मैं नहीं करता, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। उसमें स्किल इंपॉर्टेंट है, उसमें स्किल इंपॉर्टेंट है। कटिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, इट इज ऑल रिलेटेड टू द मैकेनिकल। जो चीक हो गया जिसको हम मेडिकल टर्म में गाइड बोलते हैं, इट इज अगेन नथिंग बट द चीक। चीक इज अ मैकेनिकल डिवाइस, ओके, वो इंटर रिलेटेड। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, जैसे आपके अभी कोई प्रोग्राम जैसे यहाँ पे कुछ आप कर रहे हो, ठीक है, कोई बंदा उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करता है, ठीक है, और एक कुछ गैजेट बनता है, ठीक है। फाइनली गैजेट कौन डिजाइन करेगा, वो मैकेनिकल इंजीनियर डिजाइन करेगा। प्रोग्राम कौन बनाएगा, जो सॉफ्टवेयर का नॉलेज है उसको वो बनाएगा, ठीक है। तो एक जो भी फील्ड है इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, एंड अगेन यू आर डेवलपिंग इट फॉर द मेडिकल पर्पज। तो जब तक कोई डॉक्टर नहीं रहेगा उसमें, तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगा आप जो बना रहे हो वो कितना हद तक है, कितने लेवल तक सही है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मेडिकल वाला भी आ गया, आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आता है, मैकेनिकल इंजीनियर गैजेट बना रहा है, तो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड हो गई है। तो आपको चॉइस है कि आप और मैकेनिकल में भी डाल सकते हो आपका प्रोजेक्ट, आपका आईओटी बेस्ड या एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है, या प्रोजेक्ट कंप्यूटर रिलेटेड है, आप उस डोमेन में भी जा सकते हो। मेडिकल को आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो आप मेडिकल डोमेन में भी जा सकते हो। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी।
Okay, so thank you all of you for attending this session. I hope something will be there in your mind right now regarding start and after donation. So right away after 2, means 2:30, we'll start with another session with another personality. So I hope everyone will be